ये आपका सेकंड राइट हैंड साइड आएगा, राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड, दोनों ही वैल्यू का सेम हो जाता है, वो दी रजिस्टर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखता हूँ, चेक करते हैं क्या है इसके अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है cos A plus B into cos A minus B is equal to cos square A minus sin square B, cos square B minus sin square A. Okay, these are two results here again. Let me check it. 10वां क्वेश्चन क्या है, cos A plus B into cos A minus B, इसकी वैल्यू आती है cos A plus B cos A minus B की, it is cos square A minus sin square B, okay, equal to cos square B minus sin square A. This is the value. Okay, now let me substitute these values. Left hand side solution. अब इसको see left hand side लेके solve करते हैं. What this is changed. Okay, cos A plus B, left hand side is cos A plus B into cos A minus B. This is your left hand side. Is equal to this. Substituting the values, cos A minus B, cos A plus B की वैल्यू आप पुट कर देते हैं. What is that value? Cos A plus B की वैल्यू है cos A cos B. If it is plus, then it will minus sin A sin B. Second bracket cos A minus B is cos A cos B plus sin minus plus minus sin A sin B. ये भी आपने पुट किया. Again A minus B, A plus B same value. Since A plus B into A minus B is equal to A square minus B square, इसलिए आप इसको पुट कर देते हैं. A minus B, A plus B, same value here, same value here, same. In place of A we have cos A cos B, in place of B we have sin A sin B. That means this is nothing but cos square A cos square B minus sin square A sin square B, or this is equal to cos A cos B whole square minus sin A sin B whole square. That is the part that has been changed like this, because AB whole square is A square B square. AB, as I tell you, whole square is A square into B square. ये वैल्यू आ जाती है, इसलिए इनको अलग अलग आपने स्क्वायर कर दिया. अब आपको वैल्यू लानी है cos स्क्वायर A तो रखना है, so cos स्क्वायर B को आपको चेंज करना. there is no cos स्क्वायर B here. First result is let me take cos square A as it is. Cos square B convert करें 1 minus sin square minus here sin square A नहीं है, 1 minus cos square में convert कर दीजिए. sin square A is equal to 1 minus cos square A into sin square B as it is. sin square B में लिमिट है, cos square A sin square B. तो अगर sin square A आता है तो cos square A में चेंज करेंगे, sin cos square B आता है तो उसको sin square B में कन्वर्ट करेंगे. बट यहाँ sin square A sin square B आया, sin square A को आपने चेंज किया 1 minus cos square A, sin square B था एज इट इज, बिकॉज आंसर sin square B में लाना. यहाँ पर था sin square A कन्वर्ट किया 1 minus cos square A में. आंसर मस्ट बी इन cos square A sin square B. नाउ इट इज कन्वर्टेड टू cos square A sin square B मल्टीप्लाई. तो ये आ गया cos square A into 1 cos square A minus cos square A sin square B. Second cos square A into sin square B. This minus sin 1 और minus sin square B.
माइनस प्लस प्लस साइन दैट विल बी cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखते हैं माइनस साइन cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट। वी हैव ऑब्टेन्ड हियर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये पहला रिजल्ट आ गया। हम लोग ये राइट हैंड साइड आ जाती है, फर्स्ट राइट हैंड साइड cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सेकेंड वाला देखते हैं cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। कन्वर्ट कर देते हैं नो, बिकॉज cos स्क्वायर ए नहीं साइन स्क्वायर ए है, तो cos स्क्वायर ए को आपने पुट किया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, माइनस साइन स्क्वायर बी को किया 1 माइनस cos स्क्वायर बी में। तो रिजल्ट मस्ट बी cos स्क्वायर बी में एंड साइन स्क्वायर ए में। इसलिए आपने cos स्क्वायर ए को साइन में कन्वर्ट किया, साइन स्क्वायर बी को cos में कन्वर्ट किया। It will give us 1 minus sin square A minus 1 plus sin it is cos square B। 1 minus 1 plus 1 cancel out, क्या आता है cos square B minus sin square A, cos square B minus sin square, cos square B minus sin square A। ये रिजल्ट आपका टेंथ वाला आ जाएगा, मीन्स राइट हैंड साइड आ जाती है सेकेंड बार, ये आपकी सेकेंड राइट हैंड साइड भी आ जाती है। क्योंकि सेम ये मेथड है इसका, आपको इस तरह सॉल्व करना। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन टेक 11 है। क्वेश्चन 11 में क्या है देखता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखते हैं क्वेश्चन 11 क्या है। ओके, इसको फर्दर क्लीन करना है क्योंकि डार्क है। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। tan A प्लस बी, tan A प्लस बी प्लस सी। ओके, देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 में किया गया जी 3 एंगल्स आते हैं A प्लस बी प्लस। और ये फॉर्मूला आपने A प्लस बी तक पढ़ा था, A प्लस बी प्लस सी तक नहीं पढ़ा। इसकी वैल्यू दी हुई है tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C, tan A इंटू tan B इंटू tan C अपॉन और डिवाइडेड बाई दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C, tan B into tan C minus tan C into tan A, tan C into tan A minus, ओके, ये तीन वैल्यूज है tan A tan B minus tan B tan C minus tan C tan A। ओके, दिस वी हैव टू प्रूव। इसका रिजल्ट ये आता है राइट हैंड साइड, बट अप टू नाउ वी हैव स्टडीड ऑलरेडी two angles A plus B, tan A plus B is the what? Okay, so let me take it on that ground. Solution. Left hand side की बात करते हैं। The left hand side we have tan A plus B plus C को आपने लिख ली। अब हम क्या करते हैं, B plus C की जगह आप D लिख देते हैं। Let B plus C कोई से भी दो एंगल, अगर A प्लस बी ले लीजिए और B प्लस सी लास्ट के हमने D ले लिया, तो ये दो एंगल के टर्म को मिल जाएगा। फॉर्मूला वो लगा देंगे, फिर फॉर्मूला ये हो गया A प्लस D
इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू दिस। अब इसको आप ओपन कर दीजिए सेम फॉर्मूला से जो दो के लिए था ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। दैट इसको आपने लिखा tan A प्लस tan B डी अपॉन 1 माइनस tan A tan D। ये फॉर्मूला दो के लिए था। tan A प्लस बी इक्वल tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। क्वेश्चन नंबर 3, same addition or sum formula for tan A tan theta or tan A plus B. We have just substituted here. In place of B we have D here now. In place of B plus C. So this is in two angle form or two angles only, sum formula. Same we have repeated. Now replace D by B plus C. So putting D again, replacing, or this is equal to tan A क्या हुआ है tan D की जगह लिख दिया आपने B प्लस C, वापस D जहाँ से हमने स्टार्ट किया B प्लस C को D माना था, अब D को आपने पुनः ये किया B प्लस C को किया, ओके, डिवाइड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B प्लस C को D की जगह आपने वापस B प्लस C को किया। अब यहाँ tan B प्लस C वाला फॉर्मूला फिर लगा दीजिए, डबल फॉर्मूला का यूज होगा। दिस इज tan A एज इट इज। अब tan B प्लस C क्या होता है, tan A प्लस B वाला फॉर्मूला, दैट मीन्स दिस इज tan B प्लस tan C डिवाइड बाई 1 माइनस tan B इंटू tan C। ये आपने किया tan B प्लस C की वैल्यू डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई, और दिस इज 1 माइनस tan A एज इट इज कर दिया, और tan B प्लस C की वैल्यू tan B प्लस tan C B प्लस C की वैल्यू tan B प्लस tan C को 1 माइनस tan B इंटू tan C, tan B इंटू tan C, ये वैल्यू आपकी आ जाती है। ओके, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। लेट मी चेक किया, उसको हम यहाँ रखते हैं, यहाँ करते हैं। Therefore, tan A plus B plus C we are doing is equal to this whole value। तो देखिए 1 माइनस tan B tan C एलसीएम ले सकते हैं न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। 1 माइनस tan B tan C, 1 माइनस tan B tan C, ये tan A इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर के अंदर, तो डिनोमिनेटर कैन बी टेकन एज इसका डिनोमिनेटर एज एलसीएम इन द न्यूमरेटर, दिस डिनोमिनेटर कैन बी टेकन एज एलसीएम। तो आपने सबसे पहले लेट मी राइट हियर एलसीएम लिया 1 माइनस tan B tan C इन द दिस न्यूमरेटर, दिस tan A इंटू मल्टीप्लाई करेंगे आप, दिस इज tan A देयरफॉर इंटू 1 माइनस tan B tan C मल्टीप्लाई किया प्लस साइन, दिस इज प्लस साइन tan B प्लस tan C सेपरेट आ जाता है tan B प्लस tan C, क्योंकि तो y इसके नीचे ये वैल्यू टोटल वैल्यू थी, एलसीएम को डिवाइड किया तो 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर सेम रहता है, होल डिवाइड बाय, यहाँ आपने यहाँ भी 1 माइनस tan B इंटू tan C एलसीएम लिया। इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन 1 में हो, ये 1/1 tan A मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, लेकिन इसका मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स नथिंग बट 1 माइनस tan B tan C, ये वैल्यू 1 के साथ आ जाती है मल्टीप्लाई होकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यू कैन टेक एलसीएम, 1 से डिवाइड किया दिस होल वैल्यू मल्टीप्लाई 1, सेम वैल्यू 1 माइनस tan B tan C। अब ये tan A इंटू tan B प्लस tan C को मल्टीप्लाई करके देखिए माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, माइनस साइन इसके साथ ओपन किया, tan इसे मल्टीप्लाई करके ये आएगा tan A tan B माइनस tan A tan C y माइनस, क्योंकि ये माइनस साइन और प्लस साइन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये वैल्यू आ जाती है। ओके, आपने ये देखा
Let me take other test. ओके, ये वैल्यू आपकी यहाँ आ जाती है। अब आप देखते हैं एलसीएम, दिस एलसीएम and this LCM will be cancelled out. Why? Because we know that A upon B divided by C upon B. That means A upon B multiplied B upon C हो जाता है। मतलब ये जो वैल्यू है ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। This value will come in the numerator of the first one, but ये cancel out हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगी। Therefore, multiply करते हैं 10 से, तो 10A minus 10A 10B 10C, 10A 10B 10C, 10C plus sign as it is, 10B plus 10C, okay, divided by whole divided by the whole value, nothing but 1 minus, let me write first 10A 10A 10 minus sign 10B 10C, 10B into 10C minus sign 10C 10A in chronological order we are looking at this same value is obtained 1 minus 10A 10B minus 10B 10C minus 10C 10A, the denominator 10C 10A, 1 minus 10A into 10B minus 10B 10C minus 10C 10A, numerator में क्या आता है 10A minus 10B और this product, this value is 10A minus 10A 10B 10C and 10B 10C. Okay, you have to write that again. Finally, that value comes out to be, here it is, positive value मैं लिखता हूँ 10A plus 10B plus 10C, 10B plus 10C and 10A, the three values with minus sign, 10A 10B 10C, 10A 10B into 10C, all the three values divided by, whole divided by 1 minus 10A 10B minus 10B into 10C minus 10C into 10A, this whole value 10C 10A. Okay, let us take now. So this is the same answer, hence right hand side. This is the right hand side, hence proved. Hence proved. Okay, so this is question number 11. अच्छा, 12th क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है इसके अंदर, उसको कर सॉल्व करते हैं। ओके, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, tan A plus B sin A plus B cos A plus B, इन पर बेस्ड क्वेश्चन से सभी देखते हैं, रिसर्च पर अप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कंप्लीट हो जाता है, ये है sin 2A का फॉर्मूला। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, से sin 2A इक्वल टू 2 sin A cos A इक्वल टू 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। ये आपको याद रखना, डिनोमिनेटर में क्या है, sin 2A इक्वल टू 2 sin A cos A इक्वल टू 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। इन केस ऑफ tan 2A, here it will be 1 minus tan square A in case of tan 2A, but in case of sin 2A and cos 2A, the denominator we will have 1 plus tan square। देखिए cos 2A में क्या है, नीचे हम cos square A और यहाँ पे cos square A में tan square A। okay, this is 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A। तो 1 plus tan square A cos 2A में भी आता है, sin 2A में भी आता है, और tan 2A में देखिए tan A upon 1 minus tan square A, this is the only value। ओके, और ये जो फॉर्मूले हैं A प्लस बी वाले, मतलब A प्लस बी की वैल्यू 90 नहीं होती, तो tan A प्लस बी में 90 अगर आता है, A और B 90 नहीं होते,
ओनली एक्यूट एंगल होते हैं, सम भी इनका 90 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये इनफिनिटी नॉट डिफाइन होते हैं 10। ये फॉर्मूले हैं एप्लीकेबल हैं टेन वाले, 10 90 इनफिनिटी होता है, नॉट डिफाइन। ये ए प्लस बी का सम 90 नहीं होना चाहिए, या इंडिपेंडेंटली ए और बी भी 90 नहीं हो सकते इंडिपेंडेंटली, तभी ये फॉर्मूले इसमें फिट होते हैं, आई मीन इनकी वैल्यू आती है। ओके, सो ये कंडीशन है उसकी, 10 ओनली फॉर 10, दिस इज द कंडीशन। ओके, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। क्वेश्चन 12 में आप देख रहे हैं साइन फ्लू की वैल्यू है, हम देखते हैं कि साइन फ्लू में क्या फॉर्मूला है वो लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेट मी सॉल्व इट। हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। अगर हम b को रिप्लेस करते हैं a से तो क्या आ जाएगा, रिप्लेसिंग b बाई a क्या होगा, b गेट, तो हमें क्या मिलता है जी, अगर हम b को रिप्लेस करते हैं तो वो हो जाएगा साइन a प्लस a, b की जगह आपने a को कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में यहाँ पे आ जाता है तो हो जाएगा साइन a कॉस ए, बी की जगह आपने ए पुट किया, कॉस ए हो गया, बस ये कॉस ए है ही पहले से, ये साइन ए हो जाता है इनटू साइन ए, ये भी साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए नहीं हो जाता, तो साइन ए कॉस ए हो जाता, सिंपल सी बात। ये साइन 2 हो गया राइट लेफ्ट हैंड साइड, साइन 2 ए प्लस ए, साइन 2 की वैल्यू आप देखते हैं ये आ जाती है 2 sin A cos A, but this is sin A cos A, sin A cos A. Same thing are repeated, so this is 2 times sin A cos A. अगर आप इसको हम जानते हैं, since one formula, this is ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला है, फंडामेंटल फार्मूला क्या है ये, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस 1 की जगह हम इसको डिवाइड करते हैं 1 से, दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, आपने क्या किया उसको डिवाइड किया 1 से, नो चेंज, इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन सब्स्टिट्यूट कॉस ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आपने डिवाइड किया 1 की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पुट कर दिया, इन प्लेस ऑफ 1 हमने ये रख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करते हैं तो 10 आएगा, ये डिवाइडिंग इट बाई स्क्वायर ऑफ कॉस, डिवाइडिंग इट और डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दिस, डिवाइडिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर of it, dividing numerator and denominator of it by cos square a, क्योंकि ये cos square a sin square a में स्क्वायर से आप cos square से डिवाइड करना है डिनोमिनेटर, हमेशा 10 वाले केस में cos square से डिवाइड करना है, और वाला केस आएगा तो sin square से डिवाइड करेंगे, अगर ऐसा आता है तो आपने डिवाइड किया न्यूमरेटर, दिस इज 2 sin a into cos A divided by cos square A whole divided by sin square A upon cos square A plus cos square A upon cos square A. This is 1 and 4 is equal to 2 sin A cos A, एक cos A कट जाता है, 2 sin A upon cos A, this is 2 sin, let me first write it down, 2 sin A upon cos A बचता है, whole divided by, this is 1 cos square A upon cos square A 1 plus sin square A upon cos square A, because sin A upon cos A whole square, I can write this like this, this is tan square
Okay, so we obtained the same value. Therefore, sin 2a, finally we are finding out sin 2 is equal to 2 tan a, for sin a upon cos a is tan a, divided by 1 plus sin a upon cos is tan a, tan square a. ये राइट हैंड साइड आ जाती है, ये sin 2a की वैल्यू, sin 2a ये है sin 2a का और sin a cos a भी था. Okay, so this is the question number 12. अब 13th क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या आता है. 13 नंबर क्वेश्चन 13. Okay, question number 13 is having something different. And that, okay, question 13 है cos 2a की वैल्यू. Cos 2a, there are two formulas, a number of formulas. Cos square a minus sin square a is equal to 2 tan a upon, yeah, it is also 2 tan a upon 1 minus tan square a upon 5. It is 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a in cos 2a. Sin 2a we have 2 tan a upon 1 plus tan square a, but in cos 2a 1 minus tan square a upon 1 minus 1 plus tan square a, 1 minus tan square a upon this. And there are two more formulas, cos square a minus 1 and also 1 minus 2 sin square a. There are four formulae of cos 2a. Cos 2a equal to cos square a minus sin square a. It is 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a, 2 cos square a minus 1 and 1 minus sin square a. There are four formulae of this cos 2a. Cos 2a is related into four formulae. Okay, so let me solve it. इसमें इस क्वेश्चन को देखें आप क्या क्या डिफरेंट वैल्यू आ रही है. It includes four results. Now let me take each result of this. First, cos 2. We know that cos a plus b is equal to how much? Solution. Since cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin a, ये हम जानते हैं. अब replacing b by a or putting a in place of b, replacing b by a, to b get cos a plus a equal to, this is cos a into sin a, cos b, sorry, cos a into cos a. This is cos a minus sin a into sin a. This is equal to cos square a minus sin square a. Or cos a into cos a, cos square a. Sin a into sin a means whole square of this sin square a. This square doesn't mean that we are squaring a. Angle a is not a square, but whole cos a is whole square, sin a is whole square. So this sin into sin a is sin square a. Okay. Now again, if I divide it by 1, let me divide it by 1. Cos square a minus sin square a upon 1, no change. Since 1 is equal to sin square a plus cos square a. So in place of 1 we can substitute here. इसकी जगह पे आप sin square a plus cos square a रख देते हैं, क्योंकि 1 की जगह पर 1 की वैल्यू आपने ये sin square cos square पुट की. अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by, in this case by cos square, put tan in
cos स्क्वायर से डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर a, numerator and denominator, dividing numerator and denominator by cos square a, we get cos square a upon cos square a is 1. Still let me write cos square a upon cos square a minus sin square a upon cos square a, okay, whole divided by this is sin square a upon cos square a, this cos square a upon cos square a, same value upon same value. So this will give us cos A cancelled out, this is 1 minus sin square a upon cos square a, tan square a divided by this is cos square a upon cos square a is 1 plus sin square a upon cos square a, first one is tan square a. ये रिजल्ट आ जाता है फर्स्ट, दिस वन फर्स्ट राइट हैंड साइड, ओके, फर्स्ट ये सॉरी सेकंड राइट हैंड साइड, फर्स्ट रिजल्ट तो हमने पहले cos स्क्वायर a किया आ गया, मतलब फर्स्ट वन हो गया राइट हैंड साइड, फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट, फिर दो रिजल्ट आ जाते हैं। अब आते हैं इस वाली बात पर, ओके, तो लेट मी rub this one. So we have proved here the two results. Cos 2a we have resulted in cos square a minus sin square a. This first result we have obtained. अब आप अगर sin square a को cos में कन्वर्ट करते हैं या cos को sin में कन्वर्ट करते हैं, ये दोनों रिजल्ट आ जाते हैं. What is that? Since 1 is equal to sin square a plus cos square a, therefore cos square a is equal to 1 minus sin square a, or sin square a is equal to 1 minus cos square a. इसी वाले रिजल्ट से आपने ये दो रिजल्ट निकाल लिए. अगर आपको पूरी वैल्यू cos में कन्वर्ट करनी है तो sin को चेंज करिए, अगर sin में चेंज करनी है तो cos को चेंज करिए. cos की वैल्यू को कर देंगे यहाँ से, ये वैल्यू cos की वैल्यू सपोज इसको सेम रखते हैं, साइन को कन्वर्ट कर दीजिए cos में, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर a. अब ओपन कर दीजिए cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, ये आपको आ जाता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. ये थर्ड